Chapter number 1, Introduction to Bookkeeping and Accountancy. In this video, we will be understanding what is bookkeeping. We'll try to understand bookkeeping hota kya hai, and we'll also try and understand the evolution of accounting, means how the subject of accounting has evolved over a period of time. Uski history kya hai. So let's start with bookkeeping. What is bookkeeping? बुककीपिंग इज़ रिलेटेड विद रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो बुककीपिंग इज़ नथिंग बट रिकॉर्डिंग ऑफ योर बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर. अब ये ट्रांजैक्शन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ट्रांजैक्शन मीन्स डीलिंग्स. फॉर एग्जांपल परचेजेस, सेल्स, दीज आर डीलिंग्स ऑफ बिजनेसेस में जो इस तरह की डीलिंग्स बार बार होती रहती है. तो इन डीलिंग्स को जब आप सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं कहीं पे, so that is called as bookkeeping. So bookkeeping is nothing but recording of business transaction in a very systematic manner. So why do we need bookkeeping? Bookkeeping is required for variety of purposes. सबसे पहले तो we can't remember every transaction. हम अगर business कर रहे हैं, we will be doing a lot of transactions like buying, selling, etc. So we cannot remember all those transactions. So we need to record these transactions so that we don't forget these transactions. Also, bookkeeping records help you to take decisions, help you to find out whether your business is making profit or loss. आपका बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है, ये जानने के लिए भी आप बुक कीपिंग को रेफ़र कर सकते हैं. प्लस बुक कीपिंग इज़ नॉट ओनली हेल्पफुल टू द ओनर बट इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल टू वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस. यानी और जो लोग होते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, लाइक कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा, एम्प्लॉयज़, ये सारे जो है दीज आर ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ योर business. They are related to your business. These people get impacted by your business. So bookkeeping can help them as well. For example, let's say investor की बात करें तो if there is an investor who wants to invest some money in your business, तो what he will do, he will check your accounting records. उस पे से उसको idea आ जाएगा कि what kind of business you are doing, whether you are doing it profitably or not. क्या आपका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है. ऑल दीज थिंग्स ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. कस्टमर्स आर ऑल्सो वन ऑफ योर स्टेक होल्डर्स. कस्टमर्स भी एक स्टेक होल्डर होता है आपके बिजनेस के. सो हाउ बुक कीपिंग कैन हेल्प देम. कस्टमर्स को बुक कीपिंग से पता चल सकता है वेदर यू कैन सप्लाई देम द गुड्स ऑन द टाइम और नॉट. रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी अवेलेबल टू देम और नॉट इन फ्यूचर. ये सब चीज़ जो है दे कैन गेट फ्रॉम योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रेफ़र करेंगे तो उनको पता चलेगा कि आपकी जो सप्लाई है वो उनको अनइंटरप्टेड चलेगी या नहीं. नाउ हाउ कैन एम्प्लॉयज़ बेनिफिट फ्रॉम बुक कीपिंग? फ्रॉम बुक कीपिंग इंफॉर्मेशन दे कैन ऑल्सो कम टू नो दैट वेदर दे विल गेट देयर सैलरी ऑन टाइम और नॉट. इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है इज़ हेल्पफुल टू एम्प्लॉयज़. It gives them a sense of security. Now let's talk about evolution of accounting. How the subject of accounting has evolved. उसकी history क्या है? In India during Chandragupta Maurya regime, Minister Kautilya wrote a book named Arthashastra. So when there used to be regime of Chandragupta Maurya in the past, he had a minister called Kautilya, जिसको हम चाणक्य भी कहते हैं. तो he had written a book called as अर्थशास्त्र. उसमें उसने रेफरेंसेस दिए थे बुक कीपिंग के, wherein some references can be traced regarding the way of maintaining accounting records. यानी उस बुक में उसने कुछ references दिए थे as to how your accounting records can be maintained, how you can maintain the accounting records. Afterwards people started calling it देशी नामा. अगर हम सिर्फ इंडिया की बात ना करें, if we are talking about civilization of human beings, तो 12th century से ये सब्जेक्ट जो है it is getting developed. पुराने ज़माने में इन 12th century देर वर एजेंट्स हु यूज़ टू मैनेज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेल्दी पीपल. मुनीम जी जिसको कहते थे. सो वेल्दी पीपल यूज़ टू एम्प्लॉय दीज एजेंट्स एंड दीज एजेंट्स यूज़ टू राइट बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर देम. उनका अकाउंटिंग का काम जो है ये एजेंट्स करते थे. सो वेल्दी पीपल यूज़ टू गेट देयर अकाउंट्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम दीज एजेंट्स. ये बात 12th century की है. नाउ मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम जो हम लोग यूज़ करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, दैट वाज डेवलप्ड बाय अ गाय कॉल्ड लूका डी बार्गो पासियोली. He was an Italian merchant and he developed this double entry system of bookkeeping in the year 1494. तो he started this double entry system of bookkeeping जो आज सब लोग यूज़ करते हैं. So he is a pioneer of this system. फिर 18th और 19th सेंचुरी में क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैपन, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड बिकमिंग बिगर एंड बिगर.
सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी साइज़ बढ़ने लगी. इवन जॉइंट स्टॉक कंपनीज स्टार्टेड फॉर, मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आने लगा था. पीपल हैड स्टार्टेड फॉर्मिंग जॉइंट स्टॉक कंपनीज. जॉइंट स्टॉक कंपनीज में ओनर्स एंड मैनेजमेंट आर डिफरेंट. ओनर्स अलग होते हैं और जो लोग बिजनेस मैनेज करते हैं दे आर डिफरेंट. सो इन दैट केस अगेन द बुक कीपिंग बिकेम इवन मोर इम्पॉर्टेंट. bookkeeping used to help these owners to find out the performance of their business, because उनका business जो है वो मैनेजमेंट जो है वो कोई और करता था. ओनर्स जॉइंट स्टॉक कंपनीज को रन नहीं करते हैं. वहाँ पे जो है दे अपॉइंट सम पीपल कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु रन द बिजनेस ऑन देयर बिहाफ. तो बुक कीपिंग यूज टू हेल्प देम टू check whether their business is running properly or not, whether their business is running in profit or is it running in a loss. Then came 20th century. In 20th century, the need for analysis of financial information for managerial decision making caused emergence of management accounting as a separate branch of accounting. यानी 20th century में एक separate branch of accounting called management accounting was developed. क्यों? Because there was a need. People felt that there was a need to analyze this financial information to take managerial decision. लोगों को लगा कि ये जो है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो बुक कीपिंग से मिलती है, ठीक है, उसको यूज़ करना चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए मैनेजमेंट डिसीजंस लेने के लिए. सो इसके वजह से जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग. इट इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग. Bookkeeping means recording of business transaction in books of accounts in a systematic way. ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि आप जब अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं इन अ सिस्टमैटिक वे, दैट इज़ बुक कीपिंग. तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग. All monetary transactions are recorded date-wise for accurate business results from such records at the end of accounting year. यानी जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आप करते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है इन बुक कीपिंग. डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है, यानी जो ट्रांजैक्शन पहले होता है उसको पहले रिकॉर्ड किया जाता है, जो बाद में होता है वो बाद में किया जाता है. और ये रिकॉर्ड क्यों किया जाता है? फॉर एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट्स फ्रॉम सम सच रिकॉर्ड्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ताकि वी गेट एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट्स फ्रॉम सच रिकॉर्ड्स. ये जो रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करते हैं उसमें से हमको एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट्स मिलने चाहिए एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, यानी एक अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होने पर. यानी ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं, सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज, सो दैट वी गेट एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट्स फ्रॉम सच रिकॉर्ड्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर. अकाउंटिंग ईयर यानी 1 year फॉर विच यू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. In India, the accounting year starts from 1st April and ends on 31st March. So, सब लोग जो अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, दे स्टार्ट राइटिंग अकाउंट फ्रॉम 1st April till 31st March. तो अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट्स ऑन 1st April and ends on 31st March. After 31st March, the new accounting year starts. Now let's see what are the features of bookkeeping. First, it is a method of recording day-to-day business transaction. तो ये पहले भी हमने डिस्कस कर लिया. इट इज़ नथिंग बट a way of recording business transactions, your daily business transaction. Second feature is only financial transactions are recorded. This is important. अब बुक कीपिंग में हमेशा सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे. यानी लेट्स से अगर आप लॉयर है और आपने किसी के लिए केस फ्री में आपने जो है लड़ा है, then that is not a financial transaction. Then such transaction will not be recorded in your books of accounts. So only financial transactions are recorded in your books of accounts. All records are prepared for a specific period which is useful for future references. Bookkeeping में हर रिकॉर्ड जो है, all the records that we prepare, वो एक specific period के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं, that is for 1 year, 1 accounting year. The records of transaction are based on rules and regulations. यानी आप जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो कैसे भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते. There are certain rules and regulations which you have to follow and accordingly you have to record your transactions. And the next feature is it is an art of recording business transactions scientifically. यानी business bookkeeping is an art. It is art as well as science. It is not just an art but it is art as well as science. बुक कीपिंग एक कला है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं इन अ साइंटिफिक मैनर यूजिंग सर्टन रूल्स एंड प्रोसीजर्स. नाउ लेट्स क्विकली सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग. बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? बुक कीपिंग, वाई शुड यू कीप योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स? क्यों मेंटेन करने चाहिए आपको आपके रिकॉर्ड्स?
First main objective of bookkeeping is to keep complete and accurate record of all financial transaction in a systematic, orderly and logical manner. Simple है, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप अपने सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो, उसका एक कंप्लीट और एक्यूरेट रिकॉर्ड मेंटेन करो. दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव. सेकेंड, ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज. तो सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो है आप रिकॉर्ड करते हैं, दे आर रिकॉर्डेड डेट वाइज. दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस बिफोर. Third, bookkeeping serves as a permanent record of monetary transaction of an enterprise business and it can be produced as evidence whenever and wherever required. तो bookkeeping जो है it acts as a permanent record. वो आपका एक परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है, आपके सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का एक परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है और उसको आप यूज़ कर सकते हैं एज एन एविडेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. जब भी आपको ज़रूरत हो उसको एज एन एविडेंस आप प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी के भी सामने. फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज़ टू नो प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. यानी फाइनेंशियल ईयर के दौरान बिजनेस ने प्रॉफिट किया है या लॉस किया है, दैट ऑल्सो यू कैन कम टू नो फ्रॉम योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. फाइनेंशियल ईयर इज़ नथिंग बट अकाउंटिंग ईयर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1st April एंड एंड्स ऑन 31st March. तो आपने एक अपने फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट किया है या लॉस किया है. फॉर एग्जांपल, अगर आपको जानना है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने प्रॉफिट किया था या लॉस किया, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ओपन करके चेक कर सकते हैं. यू कैन गो थ्रू इट एंड फाइंड आउट वेदर यू हैव मेड अ प्रॉफिट और लॉस लास्ट ईयर. नेक्स्ट इज़ टू नो द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ योर एंटरप्राइज. यानी आपके एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या है आपके बिजनेस के, दैट ऑल्सो यू कैन कम टू नो फ्रॉम योर बुक कीपिंग. एसेट्स मीन्स समथिंग विच यू ओन. आपके पास जो होता है समथिंग विच यू ओन. फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारे आपके एसेट्स होते हैं. फर्नीचर इज़ योर एसेट. लायबिलिटीज़ मीन्स समथिंग विच यू ओ, यानी किसी और को पे करना है, दैट इज़ अ लायबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन. तो बुक कीपिंग से आपको ये भी पता चलता है कि आपके टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज़ कितने हैं. नेक्स्ट इज़ टू नो व्हाट बिजनेस ओज टू अदर्स एंड व्हाट अदर्स ओ टू हिम. तो बुक कीपिंग से आपको ये भी पता चलता है कि आपको किसी को कितना पैसा देना है और कितना पैसा लेना है. हाउ मच यू हैव टू गिव, टू whom you have to give and how much you have to recover and from whom you have to recover. किसको कितना पैसा देना है और किससे कितना पैसा रिकवर करना है, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको बुक कीपिंग से मिल जाती है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से मिल जाती है. लास्ट ऑब्जेक्टिव, बिजनेसमैन कम्स टू नो द करंट ईयर्स प्रोग्रेस ओवर प्रीवियस ईयर एंड कंपेयर्स इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स विद अदर बिजनेस एंटरप्राइज इन सिमिलर लाइन. तो बिजनेसमैन को भी जो है पता चलता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से कि ये साल उसने प्रोग्रेस किया है या नहीं किया है. यानी ये साल उसने थोड़ा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है या नहीं किया, उसके बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म किया है कि नहीं किया एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर. प्लस वो बुक कीपिंग या अकाउंट्स अपने जो मेंटेन करते हैं उसकी हेल्प से ही कैन ऑल्सो फाइंड आउट वेदर ही इज़ डूइंग वेल और नॉट इन कंपैरिजन टू दिस कॉम्पिटिटर्स. यानी उसके कॉम्पिटिटर्स जो है, अदर बिजनेसेस जो है उसके इंडस्ट्री में, उससे अच्छा परफॉर्म कर रहा है या उसका परफॉर्मेंस दूसरे के कंपैरिजन में इतना अच्छा नहीं है, बिलो पार है.